Hello, welcome. Today, Optimizery hosting the Atlassian community event, and I'm Yogesh Kantiwal, a software engineer at Optimizery Technologies, welcoming you all at this Atlassian community event. So, the topic of the today's community event is engineering excellence and automation unlocking Jira's full potential. So, I would firstly warm welcome and presenting our two honorable speakers, Mr. Ankit and Mr. Bharat. And before we get started, I would like to thank Atlassian community. That Atlassian community is a give and take community, and all the Atlassian community events are free to attend. So with that said, I would like to call Mr. Bharat for our first talk. Please have a huge round of applause for sir. Okay. Alright, yeah. Thank you everyone for giving you a very keepy Saturday. So we understand the importance of Saturday and Sundays, right? And thank you for being here. Hopefully we will not disappoint you, and we'll try to share a lot of ideas what we can with each other. And before we start, thank you very much, Team Optimizery and Atlassian Jaipur community for inviting and give us the opportunity to talk about few things definitely, and you will enjoy that. Mastering Jira for engineering excellence. So before we jump into the next slide, quick question: how many from you from here from the product companies? Okay, others are service-based companies. Good. And in any case, any product managers or project managers around? You're right. All others are developers. So कैसा बनता है आपका project managers के साथ में developers का? Tuning, how is the tuning? You like your project managers, product managers or no? हाँ बोलना जरूरी नहीं है. LinkedIn पे सब पता चलता है. So I think it's good, and that's where we are going to see like how we can make our life very smooth and very easy and very collaborative when we work with each other on the floor. Okay. Quick introduction. Okay. So myself, Bharat Kompani, and having more than 20 years of experience in IT, I would just describe my journey as a very typical IT professional. Started as junior, become senior, project manager, product manager, now been associated as vice president of products and ops with IQF Corporation. Okay. So that's a journey, typical journey. कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है लाइफ. Simple जैसे चलते हैं वैसे बड़े होते हैं ऐसे ही बड़े हुए. ठीक है. So we will not spend much time on work, but one thing what we can say, like over this 20 years of journey, we have come across of multiple phases of IT. So when we say multiple phases of IT, as in it covers starting from desktop-based culture to getting into web-based culture to mobility. Now your best friend AI. Okay. So the good part of 20 years is like we enjoyed all the phases, right? And that's the good part. I think unfortunately you will not be able to enjoy. That's the only difference we have. Otherwise we all are same. Okay. Okay. So let's talk about takeaways. So before we get into this, feel free to ask questions in case you are not getting the words right. Okay. So it's important to understand the words right, then only you will be able to enjoy the session. Otherwise, then there will be a lot of gaps around. Got it? So when we say enhancing strategic alignment and visibility, is this clear? I need to explain. This is a takeaway for sure. Come on, make it interactive. This clear? Yeah. Okay. Fair enough. So when you work with your team, okay, team can consist of your colleagues, developers, project managers, leadership team, all that better clients. Okay. Now when you are working in such great ecosystem, it's important to understand that everyone has got their own role to play. Fair enough, right?
So now, if you are working in an ecosystem and each one of you is playing a different role, then what is that thing which allows you to work in a synergistic way? That's what is alignment and visibility. Fair enough? We'll talk more about it. Okay? Now, if you are saying that you are aligned, you have got the visibility. That means the way you communicate to each other, the way information flows, needs a proper workflow to be in place. Agree? Here, we will see how to optimize those workflow practices. Then, unified quality traceability. Fair enough? If you are delivering something, it's important to trace the delivery. It's important to make sure that it's giving a proper quality and output which is needed by your client. So you will understand like why are we talking about in the Atlassian community for all these jargons. Ultimately, this is an ecosystem. Okay, and when it comes to Jira or other products of Atlassian, they always help us to make sure this whole ecosystem works very smoothly with each other. That's the purpose. Ultimately, you will achieve this one. Fair enough? Then we will map all these things with the way we execute. Data-driven decision making. Any ideas about it? Can someone say about it? What is that? Data-driven decision making. If you want to take any decision, you have to data to support that particular decision. Perfect. You want to say something? Okay. How do you make sure the collection of data is right? That is something we will discuss here. Fair enough? But ultimately, the thing is, the understanding is right. Then automation. Fair enough? Okay. So these are our key takeaways. Okay. Very common pyramid. Everyone must have seen that. Right? क्या देख रहे हैं हम यहाँ? What do we see? We see the values, the vision, the mission, strategy, and objectives and actions. Okay, that's how the flow happens. पहले कोई भी organization होती है, they have the values. Okay, then they have a vision. Vision is something which they take before they get into the services or product, saying that how their activities would change the world, where exactly the change will make an impact. Fair enough? Now, if you have vision, you have values, now you need to put strategy. Okay? What is strategy then? Strategy की definition क्या है? This is the definition of strategy. इसको आप simplify way से अगर आप देखने जाओगे, it's all about how will you operate the things to make sure that overall objective is achieved. That is the strategy. Simple. ठीक है? Similar way, objectives and their KRs. ठीक है? Without KRs, there is no objectives. We understand the KRs? Key results. Fair? So अब यहाँ पे why are we talking about? क्योंकि कोई भी project आपकी कंपनी में जब आता है या और any product which your companies get going to take on must have something to achieve, and until that achievement is measurable, it's of no use. उसको आगे कैसे लेके जाओगे? Fair? Agree? Okay. Two examples we will take. See, अब ये whatever examples we are taking, like you can just count on. We are taking two major things to happen here. So if you see two objectives, one is operational excellency. Okay. Another is to delight your customers the kind of products you make. Fair enough? Let's take these two objectives and see how would you travel the journey through your day-to-day based activities. ठीक है? और यहाँ पे how would we use Atlassian products? Fair enough? Okay. ये जो whatever you are seeing here, any questions or anything which you want to talk more about, discussion can also find. It's not it's important कि आप question ही पूछो, discussion भी कर सकते हो. Anyone wants to talk in detail about these two statements? ये क्यों लिखे हैं यहाँ पे? So I
I want to talk about that data-driven decision making. So basically, we have past data and we take decisions based on past data. But some decisions we take when we think of something which will come into the future and there is no past data. Okay, so how do you make decisions on such things based on past data? So see, उसमें कैसा है कि then you might need to see the current market trend. Okay, so उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल था कि let's say कि if you are getting into something which doesn't exist at all, उसका कोई past track नहीं, ठीक है? उसमें दो चीजें मैटर करती हैं. First of all, आपका जो gut feeling, the way you see the things. On the top, your competitors, the existing market of it, ठीक है? It may happen the recently launched thing which is not having any data supported, but at the same time you have the details from your competitors or the market trends which talks about something about it, but it may not be in the form of data. But आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो thought process है about that, how is it rationalized, and that's where steps will be happening. So if you are taking step 1, that will give you some information for step 2. But not necessarily all the data, all the information are getting on the right. So you need to keep moving accordingly. There are a lot of products being developed on the same ground. And many times, even if your data, which is happening with the current products, are not even giving you the right information because they are not utilizing it properly. Fair enough? So ultimately what would happen, let's say, if you want to innovate something, so innovation का कोई दायरा नहीं है. Innovation is some innovation, okay? The only thing you need to see कि innovation से पहले का जो why statement है, the why statement should be right rationalized to the relation. Up the way you want to solve the problem, then it could be your success metrics. How would you like to solve the problems? So for the new innovations, definitely such approaches can be helpful. But of course, if there is no data, then your existing activities and your existing steps along with your competitors will serve that purpose. And other thing that I would like you to emphasize is on this that pyramid, because most of the here, if they want to become entrepreneurs, then they directly jump onto the bottom. Correct. Okay, so it is very important to make and emphasize that importance of everything from vision, values, and everything, and then come down to the bottom part of the Bottom part. Yes, that's so right. it is very important to emphasize on that. So I would like you to make more. We'll just spend some time with this. Okay. So this is our pyramid, right? And we understand कि like as you already said कि अगर आपको entrepreneur बनना है, ठीक है? So पहला ही जरूरी है कि what problem are you solving for the real world? Entrepreneur बनोगे ही क्यों? Why would you like to become entrepreneur? Right? So if you think that, see, ultimately, bottom line is money. That's what 90% of entrepreneurs think about. There is no money, no entrepreneurship. ठीक है? उसके लिए आपको रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा. पैसा कब आता है? Why would someone give you money? Ready for fraud. Solve their problems. Next, what next? Create a business. Create a market. Create a market. जब आप उसको वैल्यू दोगे, पैसा आप किसके लिए देते हो? वैल्यूज के लिए. If you get a value, then you give money. Simple. Okay. And ऐसा मैं बोलूँ कि like you, there are 10 people who want to become entrepreneur. The same you want. Why would someone come to you? Not to the other person or not to the fourth person or fifth person. What would be the reason? You need to set a narrative plan. Differentiators. ठीक है? So आपका differentiators क्या है? How are you solving the problem differently? How much you care about it? So those are your values. As a person, as an organization, ठीक है? As an entrepreneur.
अब आपकी जो वैल्यूज है वो टॉक करेंगी, वो लिंक होगी आपके विजन के साथ, ठीक है। सो आपका विजन क्या है? सो व्हाट इज द विजन? द विजन इज द वे यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड। मैं बोलूं कि मेरा विजन है कि लेट्स से ज्यादा लोग क्रिकेट खेलें, इज द विजन? नो, राइट? ये मेरी इच्छा है, इट्स नॉट अ विजन, ठीक है। तो व्हाट इज विजन? विजन इज समथिंग which helps the world to be changed. The activities or the actions through which you can make some change. That's your whole of vision. ठीक है? जब उबेर आया था, उबेर ने क्या किया? उसका क्या विजन? What was the vision of Uber? क्या हो सकता था विजन? Now we can book a taxi. Uber taxi is not a vision. Few minutes. Taxi can arrive. But taxi is a word. वो तो बहुत बात की बात है। विजन में टैक्सी कभी आएगा ही नहीं। Everybody can travel. चलो आप उबर बुक करते हो, क्यों करते हो? Easy. Accommodation. Security. Accommodation. सिक्योरिटी, Convenience. और Accommodate. अकोमोडेट, कन्वीनियंस, सिक्योरिटी और क्या? हाँ? To make it simple, feasible, and accessible. ठीक है। What else? तो ऐसा मान सकते हैं कि ये जो भी इन्होंने बोला, ये कहीं ना कहीं उसके विजन में शामिल है, तब जाके उबेर को आप जानते हो, उसको यूज करते हो। कैन यू से दैट? ठीक है। अब why did someone think about that part? क्यों ही सोचेगा? Related to that problem. हाँ, क्योंकि वो जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप उसको नीचे नहीं उतार पाओगे। नीचे नहीं उतार पाओगे तो हाउ वुड यू नो द मार्केट यू वांट टू कैप्चर? ठीक है। सो इसके बाद इशू आता है कि आपने सोच लिया कि मेरा विजन क्या है, अब हाउ टू डू दैट, सॉल्व कैसे करूंगा उस प्रॉब्लम? दैट्स व्हेन यू सी, राइट, वेयर आर वी गोइंग, व्हाट डू वी डू? ठीक है। अब पहले आपने देख लिया कि एस्पायरेशन क्या है हमारा, उसके बाद आप ये देख रहे हो कि हु डू वी डू इट फॉर। पहले आपने एस्पिरेशन सेट किया, अब आपके पास आया कि किसके लिए सॉल्व करो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक सड़क पे चलता हुआ आदमी, हर चलता हुआ आदमी मेरा कस्टमर है, मैं बोल सकता हूँ ऐसा उबर के केस में? बोल सकता हूँ, राइट? मैं वहां तक कैसे पहुंचा उस स्टेटमेंट तक? क्योंकि समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग यू डू एज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। ठीक है। अब वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे कैसे खींचना है, यू कॉल इट टेम, अगर आपने वर्ड सुना हो, राइट? तो उसका स्ट्रक्चर आपको कैसे खींचना है, उसके लिए यू मस्ट हैव राइट विजन एंड मिशन। अगर आप मुझे बोलोगे कि पूरा वर्ल्ड मेरा कस्टमर हो सकता है, दैट्स माय वैल्यू, ठीक है, मे नॉट बी राइट, क्योंकि हर किसी को तो जरूरत नहीं है, अपने आप कस्टमर बनेगा भी नहीं। देन यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट की मार्केट, कि मेरा मार्केट सेट कितना हो। क्या मेरा मार्केट वो हो सकता है जो कार मेंटेन करता है? क्या मेरा मार्केट हो सकता है जो टू व्हीलर मेंटेन करता है? मेरा मार्केट हो सकता है हर जो नौकरी करता है, जो हर रोज ट्रैवल करता है। ठीक है, फेयर इनफ, दैट्स हाउ यू सेट योर मार्केट। तो वंस यू हैव दैट मार्केट, देन यू पुट योर स्ट्रेटजी इन प्लेस। आप बोलोगे कि नाउ लेट्स पुट सम स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसे काम करता है? स्ट्रेटजी का देयर इज अ फ्रेमवर्क एंड इट्स कॉल्ड डायमंड फ्रेमवर्क और समथिंग, आई विल जस्ट टेल यू द एग्जैक्ट नेम, बट it talks about the kind of channels, it talks about the arenas you deal with. तो स्ट्रेटजी आपको कहाँ पे लेके जाएगा, वो बताएगा आपको कि कौन से चैनल्स, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, कौन से तरह के लोगों पे, पर्सोनास पे यू नीड टू डील विद। Then you become the whole diamond, and that diamond solves your purpose of putting the strategy. आपके पास स्ट्रेटजी आ गई, नाउ वी से कि यार अब स्ट्रेटजी तो आ गई हाई लेवल, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे केआर सेट करने। Those are your last KPIs and actions KPIs. Until you say कि मैं 100 में से 50 लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तब तक आप उसको एग्जीक्यूशन पे लेके कैसे जाओगे? आपको कैसे पता कि आपको 100 में से 50 ही टारगेट करने, 100 में से 100 टारगेट नहीं करने, और 100 में से 100 टारगेट नहीं करने तो क्यों नहीं करने, राइट? That's where your business might come to the picture. कि अगर मेरे पास 100 रुपए है खर्चा करने के लिए, तो 100 रुपए में से मैं 25 रुपए कहाँ खर्चूं, 25 रुपए कहाँ खर्चूं, बाकी के 50 कहाँ खर्चूं? ठीक है। और वो जो रेशनलाइजेशन है,
ये जो आपने 25-25-50 का बनाया, that only comes to you once you are clear with these things. जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक आप वो जो एंड मोमेंट का जो पार्ट है ना वहां तक पहुंचोगे ही नहीं. प्रॉफिट तो दूर की बात है. अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने बंदों को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं किया, सब बेकार. So that's why I think thank you for this to allow me to talk on this particular slide is very important. क्योंकि जब आपके कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, इसको आप दोबारा से सोचो. Why is your company doing business? ठीक है, हम हमेशा ऑपरेशनल हो जाते हैं फ्लोर पे. क्या प्रोजेक्ट लेके आ गया, क्या प्रोजेक्ट मैनेजर है, या रात को जगा रहा, सुबह जगा. मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम यही दिमाग में चलता रहता है, ये क्या कोड में अटक गया. कभी कोई ये सोचता है कि ये कंपनी जो है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये है ही क्यों. ठीक है, गॉट इट. थोड़ा सा उस लेवल पे अगर आप जाकर सोचोगे तो कंपनीज की कुछ वैल्यूज होती है, हर कंपनी एंड देन डिफर्स. सभी कंपनीज की ऐसा नहीं कि आईटी की कंपनी है तो वो उसी तरह से सोचे जो आईटी की दूसरी कंपनी सोचती है. हर कंपनी की वैल्यूज अलग होती है. फिर ना जब तक आप ये माइंडसेट नहीं करोगे, और तभी ऐसा ही होता है कि द मोमेंट यू गेट इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप का वाला रेंज, आपका सोच बदल जाता है वर्सेस व्हाट यू हैव टुडे व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समवन. फिर आपको रात को जागने में भी तकलीफ नहीं होती है, सुबह जल्दी उठने में भी तकलीफ नहीं होती है, पर अभी सब जगह होती है, राइट. तो कहने की बात क्या है कि अगर आपको नजरिया बदलना है तो जर्नी जो एंटरप्रेन्योरशिप की वो यहाँ से शुरू होती है. और बिलीव मी कि ये यहाँ तक पहुंचना बहुत टफ, इट्स नॉट इजी. इसमें एआई भी काम नहीं आएगा. सॉरी, आप एआई को बोलोगे ये लिख के देने को दे देगा ना, तो भी आप समझते जाओगे यार भाई साहब ने लिखा क्या. यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपको खुद तय करनी है, यहाँ से पूरी एंड तक जर्नी आपको खुद तय करनी है. इसके बाद आप डेफिनेटली ऑपरेशनल हो जाओगे तो आपको यही हो सपोर्ट. गॉट इट. ठीक है, एंड अवर एग्जांपल्स विल टॉक अबाउट दैट ओनली, द रियल एग्जांपल्स. ठीक है, एंड वी आर वर्किंग विद द कंपनीज लाइक हैविंग $50 million रेवेन्यू. ठीक है, और ऑफ कोर्स टारगेट ओरिएंटेड, प्लान एंड हैविंग ग्रेट टीम इन प्लेस. 100 लोग 200 लोग काम कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जो वो 100-200 लोग हैं, हर कोई बंदा अपना एक आंकड़ा लेके बैठता है. ठीक है, सो देयर आर एनालिटिक्स सर्विसेज अवेलेबल which says कि everyone in the company should be giving $1 million of revenue in a year. ठीक है, that's the ideal way of running the company. अगर वो कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो. ठीक है, and that's where your data driven decision making वाला part है. ठीक है, anyone wants to say something on this? So I just want to ask how related to all this. Yes, we will talk about in our upcoming slides. So वहाँ पे there are a lot of help. So until we have this structure in mind, it's hard to trace. It's hard to set the proper workflow and expectations for everyone within the organization. So that's where I took these two examples. यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है enhance operational efficiency by accelerating execution speed and minimizing errors. ठीक है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के लिए, स्पेशली लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट और लेट्स से ऑन द आईटी में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इसका. सो लेट्स से फॉरगेट अबाउट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, राइट, लेट्स टॉक अबाउट मिनिमाइजिंग एरर्स. इसके बारे में बात कर सकते हैं. ये ऑब्जेक्टिव क्यों हो सकता है किसी भी, व्हाई वुड समवन कीप दिस. वर्किंग मोड होती है, एफर्ट ज़्यादा लगता है. अगर एरर्स मिनिमाइज नहीं करेंगे देन देयर विल बी अनदर साइकिल ऑफ टेस्टिंग. Yes. Okay. It will greatly increase the effort. Okay. What else? Anyone else want to say something about it? Sorry? Okay. So you can become more confident about the services. We can say that. ठीक है. और
जब आप अपनी सर्विसेज पे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो तो रिजल्ट क्या आता है? Collaborating. ठीक है, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई रहता है, ही बिकम मोर एडवोकेट फॉर योर सर्विसेज ऑन दैट मैटर। तो आपका खुद का जो कस्टमर है वो आपका खुद का ही मार्केटिंग और सेल्स का बंदा बन जाता है थ्रू एडवोकेसी। फिर ना वो स्टेज तक पहुंचाने के लिए क्या जरूरी है कि हम मिनिमाइजिंग एरर्स वाला बात करें। अब आ जाते हैं ऊपर वाले ऑपरेशनल एफिशिएंसी। व्हाई इज दैट नीडेड? क्योंकि अभी के टाइम में टाइम टू मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज या लेट मूवर एडवांटेज भी होते हैं, उसमें वो डेफिनेशन भी होती है। एंड व्हाट इज दैट लेट मूवर एडवांटेज ना? जो गैप्स फर्स्ट मूवर वाले छोड़ गए जल्दी भागने के चक्कर में, जो डिलाइटनेस वो छोड़ गए भागने के चक्कर में, लेट मूवर को वो एडवांटेज रहता है कि वो सब वहां से कैप्चर करता आगे चलता है। ठीक है, तो अब वो चीज अगर आपकी ऑपरेशनल एक्सीलेंसी के थ्रू अगर आप हासिल कर लेते हो देन यू विल डेफिनेटली गेट अ ग्रेट बेनिफिट्स। अब ये ऑब्जेक्टिव है, दिस ऑब्जेक्टिव। ओके, अब दूसरा पढ़ते हैं, की बिल्डिंग अ मॉडर्न स्केलेबल प्लेटफॉर्म दैट लीड्स इंडस्ट्री विद स्मार्ट फीचर्स एंड अ स्ट्रांग फोकस यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म क्या होता है? इट्स अ कॉम्बो ऑफ स्मॉल प्रोडक्ट्स। यही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे मल्टीपल चीजें साथ में आके काम करती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स साथ में काम कर लेते हैं, दैट्स योर प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब आप ऐसा बोलते हो कि आप ऑलरेडी एक जगह खड़े हो, यू ऑलरेडी हैव अ प्लेटफॉर्म, यू ऑलरेडी प्रोडक्ट्स। अगर आपको स्केल करना है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि कस्टमर्स के लिए जो मैटर करते हैं वो फीचर्स, वो प्रोडक्ट्स यू शुड फोकस। फेयर इनफ? ये दो ऑब्जेक्टिव आपके हो गए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने, हम खाली दो का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग द एग्जीक्यूशन है फॉर प्रोडक्ट कंपनीज। ठीक है, शुरू होता है आपका डिस्कवरी से। ठीक है, और जहाँ पे आप रिसर्च करते हो, अलाइनमेंट करते हो विद द नीड्स, सेल्स टीम हो गई, आपकी बिजनेस टीम हो गई, जो भी टीम आपकी मार्केट में काम कर रही है। ठीक है, फिर आप जाते हो डिजाइन वालों के पास, बोले इसका रिफाइनिंग करो पूरा। ठीक है, वो रिफाइन करेंगे पूरा, हैंड ओवर टू डेवलपमेंट टीम। ठीक है, डेवलपमेंट टीम क्या करेगी? उसको डिलीवर करेगी। डिलीवर करके आप उसको मेजरमेंट में रख दोगे कि यार वी हैव डेवलप्ड दिस, लेट्स स्टार्ट मेजरिंग इट। मीनवाइल वी गो बैक टू द नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द एग्जीक्यूशन है फॉर एटलीस्ट फॉर प्रोडक्ट कंपनीज। ठीक है, अब आप ये जो आप जर्नी देख रहे हो अपनी, इस जर्नी में जितने जितने भी आपको एंटिटीज नजर आ रही, ऑल द एंटिटीज आर नाउ इंपॉर्टेंट टू बी कैप्चर्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अब आपका एग्जीक्यूशन आता है पिक्चर में और यहाँ से एटलासिन आता है पिक्चर। अब तक यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस बनाना क्यों है, बिजनेस बनाने के लिए जरूरी और इंपॉर्टेंट चीजें क्या कंसीडर करनी है, सब बातें सब हो गई, बातों का काम खत्म। ठीक है, नाउ कम टू द एग्जीक्यूशन। ऊपर हमें वर्ड लिखो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट रोड मैप। ठीक है, प्रोडक्ट रोड मैप पहले क्या था कि I think long back when we had Jira was like more kind of a ticketing based system. क्या tickets बनाओ, solve करो, आगे बढ़ो, इतना ही था। ठीक है, now whatever journey we talked about so far, now you will understand why did I talk about that particular journey. ठीक है, अभी आप ये देखो कि हम बोल रहे हैं objective based product roadmap. So what is product roadmap? Any idea? Any idea what is product roadmap? ओके, प्रोडक्ट बैकलॉग सुना है या ऑन दैट मैटर बैकलॉग इज अ वर्ड सुना है राइट? स्क्रम कितने लोग करते हैं? स्प्रिंट ऑलमोस्ट सभी करते होंगे। ठीक है, बैकलॉग ग्रूमिंग करते हैं ना, वी डू बैकलॉग ग्रूमिंग राइट? ओके, क्यों करते हैं? एनीवन हियर प्लेइंग अ रोल ऑफ बीए, बिजनेस एनालिस्ट, या किसी का यार दोस्त बिजनेस एनालिस्ट हो जिसके साथ आप चाय कॉफी पीने जाते हो ब्रेक में? नहीं, चलो कोई बात। ओके, सो आ जाते हैं प्रोडक्ट रोड मैप पे। ठीक है, सो रोड मैप क्या होता है? सो नाम से पता चलता है रोड मैप। ओके, सो व्हेन यू हैव लॉट टू डू, ओके, यू नीड टू मेक श्योर कि व्हाट टू डू। सही है,
ऐसा ही होता है ना, दिन में 100 काम करने 100 तो नहीं होंगे, 10 होंगे, और 10 कौन से होंगे? प्रायोरिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंस, जो पहले खत्म करने पड़ेंगे, जो कल का वेट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ इन लेमन लैंग्वेज दैट्स योर रोड मैप। एंड व्हाई डिड वी से ऑब्जेक्टिव बेस्ड रोड मैप? क्योंकि रोड मैप्स के देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग द रोड मैप। रोड मैप क्या होता है? बेसिकली इट्स अ लिस्ट ऑफ टू डूज। जब हम टू डूज बोलते हैं ना, उसको बहुत हल्के में मत लेना कि टू डूज ही तो है, हल्के में मत लेना उसको। सो फॉर प्रोडक्ट समटाइम इट्स अ ईयर लॉन्ग थिंग, ऐसा नहीं कि 2 दिन में खत्म हो जाने वाली चीज नहीं, तो इट्स अ बिग थिंग। तो इसलिए रोड मैप को बहुत सारे तरीके से देखा जाता है। सो रोड मैप कैन बी योर नाउ नेक्स्ट लेटर, जैसा आपने बोला, दैट कैन आल्सो बी रोड मैप। रिलीज बेस्ड रोड मैप्स भी होते हैं जो प्रॉपर खाली रिलीज पर फोकस करते हैं, फीचर बेस्ड होते हैं, खाली फीचर फोकस करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड रोड मैप, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप उस स्टेज में हो, व्हेन यू आर गोइंग टू हिट द मार्केट, तो आपको ऑब्जेक्टिव बेस ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हमने जो लास्ट स्लाइड में बात की है, ठीक है, एंड वो आपको कैसे हेल्प करता है? इनेबल्स आउटकम ड्रिवन प्लानिंग, ठीक है, पहली बात। और दूसरा हमने लिखा इंप्रूव्स प्रायोरिटाइजेशन अकाउंटेबिलिटी, जो आपने प्रायोरिटाइजेशन की बात करी, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है सैंपल, व्हाट यू सी हियर, बट दिस इज वेरी मच पॉसिबल थ्रू Atlassian, and we are using it like that. You have plan, ठीक है, in Jira you have plan, right? Use plan for product discovery, ठीक है, create this, then convert it into the views like this, and this is Wiser, again one of the apps available on marketplace of Atlassian, ठीक है। Let's go back, we'll come to this. यहाँ तक now I think if you see this, ये वाला चीज, you are clear like why are we seeing this? अब ये क्लियर है आपको? जो हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं। की रिजल्ट क्या है? मिनिमाइजिंग एरर्स और ऑपरेशनल एक्सीलेंसी में की रिजल्ट्स क्या हैं? की रिजल्ट्स आर समथिंग व्हिच आर ऑलवेज मेजरेबल, कभी भी वो बिना नंबर के नहीं आते स्टेटमेंट। सो व्हेन वी से मिनिमाइजिंग एरर, तो हम ये बोलेंगे कि वी विल मेक श्योर दैट आवर प्रोडक्शन इश्यूज आर लेस देन 5%। 5% जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होगा तो देयर इज नो की रिजल्ट। सिमिलरली आई विल इंप्रूव माय कोडिंग स्पीड बाय यूजिंग एआई कोड एडिटर्स, लेट्स से बाय 20%, ठीक है। जो कोड मैं 2 दिन में लिखता था, वो कोड मैं आप समझो 1 दिन में लिखता हूँ, इसमें 50% गया, बट व्हाटएवर, गॉट इट। सो ये जो चैप्टर है, इफ यू सी द की रिजल्ट्स, ऑल आर नंबर्स, गॉट इट। अब यहाँ पे आप क्या करते हो? अब आप जो नीचे देख रहे हो, वो सब आपको जाने पहचाने वर्ड्स लिखते होंगे, एपिक, स्टोरीज, फीचर्स, ठीक है। ये कैसे काम करता है? वंस योर ऑर्गेनाइजेशन सेट द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड वंस यू स्टार्ट क्रिएटिंग फीचर्स इन जीरा, यू स्टार्ट मैपिंग दोज विद योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और मैपिंग कैसे पॉसिबल है? डिफरेंट वेज। आप उसको टैग कर सकते हो, आप उसको लेबल कर सकते हो, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो किसी भी मोड में, ठीक है। पर अल्टीमेटली क्या होगा? आप ऐसा समझो कि टुडे वी आर सिटिंग एट लेट्स से 1 अप्रैल, ओके, एंड दिस क्वार्टर एंड्स इन लेट्स से अप्रैल 22, जून 30 द क्वार्टर खत्म होता है, ओके। नाउ एट एंड ऑफ दिस क्वार्टर you can always say कि there was an objective of organization which is further getting into the ऊपर वाला झंडा, ठीक है। Now if your this quarter's features what you worked on easily traceable हो जाएगा, traceable। आपने इस क्वार्टर में 4 एपिक्स पे काम किया, 4 फीचर पे काम किया, and all 4 epics are linked with some key results, ultimately objectives, ठीक है। Then you go back to the quarter end and see कि ये क्वार्टर में how did I achieve the overall journey? पॉसिबल है? यस, नो, ठीक है। एंड उसके बारे में हम आते हैं, हाउ वुड वी टेक दैट पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन। बट अ क्वेश्चन हियर, कितने लोग जीरा यूज करते हैं? ओके, और किस लेवल पे यूज करते हैं? व्हाट ऑल मेंबर्स ऑफ जीरा डू यू यूज? सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। चलो मैं एक कंपोनेंट आ जाता हूँ, ठीक है। वो कंपोनेंट को हम बोलेंगे दैट्स ए स्टोरी, ठीक है। क्या क्या यूज करता है स्टोरी? चलो एक स्टोरी दिख गई जीरा, क्या क्या यूज करता है?
What all do you use? Neighbors. So comments डाल दो. Comments डाल दो. Description होता है. Description होता है. We have to make over there. जो timelines होती है, estimate time होता है. Okay. इसके अलावा we are like कितने pointers होते हैं, like कितना time देगा. Okay. 10 में कितना time दिया, 20 में कितना time दिया. So basically fields. Yeah. ठीक है. Fields are use कर रहे हो. Fine. You want to add something? Labels you said, right? Yeah. Labels. Okay. Categorize the stories. Categorize the stories. What else? Timing. 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 Assigning. Okay. What else? और जो status होता है, making progress. बिल्कुल. Very very important. Very very important. ठीक है. What else? But we can link the stories. जैसे कि बिल्कुल. make a task there. Yes. And going to simulate the story. Link है. किस टेबल पे link है? Fair. Sometimes stuff fields. Custom fields. Fair. अब आप देखो, हमने खाली एक स्टोरी की बात करी है, ठीक है? एक कितना सारा यूज करने के लिए. अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको यूज करते हैं, तो इसका डेटा ड्रिवन वाला पार्ट किधर है? डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट. डू वी डू समथिंग अबाउट इट? ये सब बढ़ जाएगा. डेटा ही है ना जो भरा है, तो डेटा ही तो है. फिर क्या करने का इसका? That's where your data driven वाला part will come into picture. ठीक है? And we will show you the examples. Those are the actual live examples with some of the clients, but definitely those are live examples. ठीक है? So यहाँ तक ये clear है. ये clear हो गया? तो थोड़ा roadmap के बारे में just पढ़ना. What is roadmap and why would someone have the roadmap in place? ठीक है? और आपका अगर roadmap बन जाता है, then how would you track it backwards from the objectives? ठीक है? Okay. अब ये आपका visualization. So at any point of time, you want to visualize कि where I am. मैं एक कंपनी रन करता हूँ, मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, मैं सेल करता हूँ. उस 4 प्रोडक्ट्स के लिए इस साल मैंने डिसाइड किया कि मार्केटिंग टीम सब काम करके आगे, सेल्स टीम सब काम करके आगे कि ये प्रोडक्ट है, आप मुझे बना के दोगे, मैं मार्केट से 1 करोड़ का बिजनेस आपको ला. ठीक है? एग्रीड? और बोलोगे चलो ठीक है आपको बना के देते हैं. बराबर? अब एक बात आप ये सोचो कि आप उसने बोला बना के दो, आपने बना दिया. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? आपके पास सेल्स टीम वाला बंदा रखा है, आपने उसने बोला कि मेरे को ये प्रोडक्ट तो मैं मार्केट में बेच के आऊंगा, आप बोला लो बना के देते हैं. तो आपने बनाने के लिए कुछ पैसा लगाया होगा ना, डेवलपर्स की सैलरी होगी, टाइम होगा, दैट्स योर कॉस्ट, राइट? उसके बाद क्या? हाँ? नहीं रिक्वायर आपने तो बना के दे दिया उसको. उसके बाद क्या? उसके बाद ये, ठीक है, आपने उसको बना के दे दिया, इट गोस टू मेजरमेंट. देन यू गो बैक टू, आप तो अपनी दुनिया में वापस चले गए, आइडेंटिफाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, आपने उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया. ऐसे चलेगा? आप यहाँ वेट तो नहीं करोगे उसका कि क्या तो पहले बेच किया तो मैं दूसरा चालू करूंगा. नो, राइट? दैट्स योर मेजरमेंट विल हैव. ठीक है? अभी हम यहाँ पे आते हैं. सो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये सबने देखा होगा, ऐसा ऐसा बीमेस तो सबने देखा होगा, लाइन बहुत कॉमन सही है. ठीक है ना? बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ? ये मैंने ब्लर किया हुआ है क्योंकि हमारा एक्चुअल, तो आई हैव जस्ट ब्लर्ड, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? As a manager, how would this help you? Exactly. You can plan it better. Now, from which place you are getting this plan? The way you entered the inputs to your epics or your features. आपको कुछ करना ही नहीं है, it will give you. And there are apps available on the marketplace. You can use it and you can tag through Jira. It will give you like. आपको अलग से कुछ effort डालना नहीं है. Fair enough? So now, if we are aligned with कि why this strategy and everything works and how is that been placed, अब अगला टॉपिक आ जाता है वर्कफ्लो का. ठीक है, which we talked initially. What is workflow? ठीक है, so before we get into workflow, any questions, any discussion points that you want to take? So far so good. पक्का आगे बढ़ जाए.
ठीक है, so efficiency is doing better what is already being done. ये स्टेटमेंट से सभी राजी हैं, ठीक है। अब ये वर्कफ्लो के केस में क्यों स्टेटमेंट जरूरी है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो व्हेन यू डिफाइन अ वर्कफ्लो, एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज वर्कफ्लो? सबको पता है राइट वर्कफ्लो क्या होता है, क्योंकि जीरा यूज कर लो तो वर्कफ्लो तो पता ही होगा, ठीक है। तो उसका कैटेगराइजेशन क्यों जरूरी है प्रॉपर? क्योंकि इट विल हेल्प यू टू अलाइन विद योर प्रोडक्ट रोड मैप, ठीक है। सो अंटिल यू वर्कफ्लो, ओके, तो वर्कफ्लो में कैसे होता है काम कि यू हैव सम रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट नीड्स टू गो टू वेयर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट? हमने वो फ्लो में देखा था, रिक्वायरमेंट का क्या करेंगे आगे? प्लानिंग करेंगे, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, फिर डिजाइन, फिर बिल्ड करके कोड करके बिल्ड करेंगे, कोड करेंगे, ठीक है। अब इसको प्यार से क्या बोल सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर टेस्ट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इस लाइफ साइकिल में सबका अपना अपना रोल है कुछ ना कुछ करने के लिए, हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। एंड डू यू नीड टू से समवन की जैसी कंपनी में कि यार एक काम कर, तेरे को आज ये करना है, फिर दूसरा ना उसको बोले इधर इधर तेरे को ये करना है, ऐसा ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्केलेबल नहीं, ठीक है। कंपनी में 2 जने हो ना तो भी वो स्केलेबल नहीं, फॉरगेट अबाउट 200 जने और 2000 और 2 लाख, दैट्स नॉट अ स्केलेबल प्रैक्टिस। उसके लिए यू डिफाइन अ प्रॉपर वर्क which talks about कि at any point of time which entity needs to sit where, so that input or output of every entity gets connected properly in terms of the proper and smooth execution. यहाँ तक ठीक है? So that's where the categorization of, जब तक आपको properly design नहीं करोगे workflow, बनाने के लिए बना दिया ऐसा नहीं होता है. You must have the proper understanding of each and every department कि वो डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके लिए क्या जरूरी है और उसके आउटपुट किस डिपार्टमेंट के लिए इनपुट की तरह जरूरी है. क्लियर है ना? सो अलाइन विद द प्रोडक्ट रोड मैप, डिफाइन स्कोप एंड डिपेंडेंसीज. जब तक आपकी डिपेंडेंसीज डिफाइन नहीं होगी, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज किया है काफी लोगों ने, ठीक है, वो क्या बोलता है, ये आपका फिनिश टू स्टार्ट है, ये आपका स्टार्ट टू फिनिश है, वो लिंक आता है ना उसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, और वो क्यों आ रहा है? जैसे जीरा में आपने लिंकिंग का बोला, इट हैज टू बी डन विद, लिंकिंग का टाइप होता है, इट हैज टू बी डन टुगेदर विद इट्स ब्लॉकिंग, राइट? तो दैट्स वेयर योर प्रॉपर स्कोप, डेफिनेशन और डिपेंडेंसी हैज टू बी डिफाइंड. क्योंकि जो आपकी क्रॉस हेल्प होती है, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रॉपर यूजर स्टोरीज. ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हम फ्लोर पे आ गए. पहले जो हमने बात करी थी इस 2 स्लाइड से पहले, तब तक हम लोग सब ऑब्जेक्टिव्स और केपीआईज की बात कर रहे थे. नाउ वी आर ऑन द फ्लोर, वी आर यूजिंग थिंग्स, वी आर वर्किंग वेरी कोलैबोरेटिवली विद ईच अदर टू मेक श्योर दोस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. ठीक है, सो ब्रेक डाउन इनटू द यूजर स्टोरीज. तो जब तक आपका यूजर स्टोरीज ब्रेक नहीं होगा, योर डेवलपर, यूजर स्टोरीज किसके लिए बनती है, बनाता कौन है? बीए. किसके लिए बनाता है? डे और क्यूए के लिए. क्यों? हाँ, क्योंकि इट कन्वर्ट्स द मैपिंग ऑफ बिजनेस टू टेक्निकल. दैट्स अ मैपिंग हैपेंस थ्रू यूजर स्टोरी. अगर आप यूजर स्टोरी के जो कंपोनेंट्स देखोगे तो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन ऑफ डन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये होता है ना सारा. ठीक है, तो वो आप किसको समझा रहे हैं? डेवलपमेंट टीम. ठीक है, अब वो आपका एक चैनल है जहां पे आप डेवलपमेंट टीम से हैंडशेक कर, दैट्स योर हैंडशेकिंग. ठीक है, नाउ दैट्स वेयर योर कैटेगराइजेशन ऑफ वर्कफ्लो इज इंपॉर्टेंट. अब आप यहाँ पे ये जो आपने जो यहाँ तक तोड़ा इसको, ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, तोड़ के हाथ में दे दिया. अब क्या करोगे आप? अब जो टीम को दिया है वो रिपोर्ट बैक तो करेगी ना. द रिपोर्टिंग शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द वर्कफ्लो, क्योंकि आपके पूरे इकोसिस्टम में फ्लो तो चालू होना चाहिए ना उसका. फिर ना, तो उसका जो पोर्शन है अल्टीमेटली आपका कंप्लीशन क्राइटेरिया में कन्वर्ट होगा. फिर तो ये जो वर्कफ्लो के जो कैटेगराइजेशंस है, ये ऐसा नहीं होता है कि ऑन द बुक्स लिख लिख के किए जाते हैं.
इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी डिपार्टमेंट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी प्रॉपर्ली एंड सेइंग दैट कि मैंने ये आपको टास्क बना के दिया था, मेरे लिए वो टास्क नहीं है, मेरे लिए वो बिजनेस है। एज अ डेवलपर आपके लिए वो टास्क है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है, आप अगर सेल्स वाले बंदे को बोलोगे कि यार उस एपीआई में एरर आ रहा है, बोलेगा मेरे भाई माफ कर दे, मेरे को चलेगा कब वो बता दे। ऐसे ही बोलेगा ना, क्लाइंट को क्या बोलेगा कि एपीआई में एरर आ रहा है, समझ रहे हो? तो जो मैपिंग ऑफ माइंडसेट है ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेटिंग द राइट पाथ। क्लियर ना? So आपका क्रॉस प्रोडक्ट इकोसिस्टम, सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि एक प्लेटफॉर्म है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर बना हुआ। एट द सेम टाइम ऑल द एप्स आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, अब ये एप्स इंटरकनेक्टेड होगी, नाउ यू कैन गो बैक एंड चेक योर माइंडसेट विद वर्कफ्लो कि आपने वर्कफ्लो बनाया था। अगर ये आपको वेब दिख रहा है कहीं पे, दिस वेब कैन बी इजीली मैनेज्ड इफ योर वर्कफ्लो इज मैनेज्ड। क्लियर? ये एक टिपिकल वर्कफ्लो है, आई थिंक सबने देखा होगा जीरा में। सो इसका सो आई अंडरस्टैंड कि देयर आर लॉट ऑफ स्टेजेस, बट डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन टेक इट ऑफलाइन। आई कैन एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि ये जितने भी स्टेजेस हैं, हाउ दो स्टेजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी टीम टू मेक श्योर द जर्नी इज ट्रैक प्रॉपर्ली। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी लेवल एंड दिस इज अ बग लेवल। ठीक है, एंड समटाइम्स यू सी कि यार चार चीजों से भी तो काम चल सकता है। ठीक है, ओपन किया, टू डू किया, इन प्रोग्रेस जो भी किया, डन किया, खत्म, उससे भी तो काम चल सकता है, उससे काम नहीं चल सकता क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव स्टेजेस हो जाती है अगर आप वो चार में खत्म करते हो। ठीक है, वो एकदम वो बुकिश वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स। अगर आपको फ्लोर पे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है द राइट स्टेज, मे बी वर्ड्स यू कैन चेंज, but at least you must have the clearly defined workflows. Where I can explain in detail if you want. Okay, but that's we can take off. इसकी इम्पोर्टेंस we all know, we talked about it. ठीक है, so यहाँ पे जो हम देखते हैं ना कि कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स आपको हमेशा दिखते हैं जीरा में। Whenever you start using it, you see the standard. But standard fields के अलावा क्या होता है कि many a times your organization needs a different type of information to flow, to understand the right status of the right thing. अब वो क्या होता है आपका, let's say we talk about value prop product, let's say look at this field, value prop product. So ये जो इस तरह की जो fields हैं जो आप define करते हो, sometimes it's not a field just to when you select the values. You can always write some automation rules which helps you to fill the values in these fields automatically. ठीक है, and it's very important to have all these or such importance of the fields and the automatic fulfillment of those information, so that you whenever you get into the flow of the ultimate requirement status, you have the very right picture. ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे just talk about this. So now we are reaching to unified quality traceability. We'll talk about 6 parameters here. जैसे कि said कि बहुत it's a C, right? आप सब जगह नहीं पहुँच पाओगे। So let's talk about 6 important things and how did we leverage those. You will find it here. Let me just fill in here first. Okay. You get into total issues. You get into total bugs. You get into reopened issues. So traceability easy है. आप उसको लेबलिंग करते हो, let's say कि status change to reopened. ठीक है, यहाँ पे आप उसको issue type bug में convert करते हो और यहाँ पे आपका total issue करते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमने बात करी मिनिमाइजिंग एरर्स, तो मिनिमाइजिंग एरर वाला ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे जस्टिफाई नहीं होगा कि मैंने बोला लास्ट क्वार्टर से तो कम एरर आए तो ऐसे हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट हैज टू हैव सम रैशनल्स। तो वो कैसे आता है, लेट्स से कि वी टॉक अबाउट दिस एंड नाउ लुक एट दिस। आपका रिग्रेशन इश्यूज है व्हिच टॉक्स अबाउट लेवल्स टाइप लाइक रिग्रेशन। आरसीए डन है, आरसी इज द रूट कॉज एनालिसिस। ठीक है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव विद इन द कल्चर, ताकि आपका जो मिनिमाइजिंग एरर वाला जो ट्रेंड है ना, वो वहां से पता चलता है कि अगर कम हुए तो क्यों हुए और नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, सेम थिंग ब्लॉकर्स, यू कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई ब्लॉकर्स सेपरेटली। अब इतना करने के बाद में लेट्स से वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन डिपार्टमेंट हियर, ओनली टॉकिंग अबाउट वन ऑब्जेक्टिव, बाकी सबको छोड़ दिया।
ठीक है. And then if you see this is a real exercise we did. What you see is small, medium and large type of features. Just using those particular things, 6 things we just discussed, we have in detail information available which talks about कि आपका टोटल काम कितना हुआ था, ठीक है. आपका छोटा फीचर, मीडियम फीचर और बड़ा फीचर, 3 साइज ऑफ फीचर. आपका टोटल काम कितना हुआ था, कितना ह्यूमन हुआ, कितना रिग्रेशन आया, कितना आरसीएम, कितने ब्लॉकर. अब आपका इसमें आप ट्रेंड देख रहे हो. अगर आप ट्रेंड देखो टोटल बग्स में, छोटे में कितना परसेंटेज है, 43, मीडियम में कितना है, 40 और बड़े में कितना है, 44. मतलब आपकी टीम कंसिस्टेंटली 40 के अराउंड परसेंटेज पे खेल रही है बग्स में. दैट्स वेयर आई सेड कि ऐसा नहीं होगा कि मैं पिछले क्वार्टर में 4 ही किए थे, इस क्वार्टर में 2 ही बग आए तो आई एम डूइंग बेटर. नहीं, आपको रेशनलाइज होना पड़ेगा. उसके लिए दिस इज हाउ एंड इट दिस एक्सरसाइज गॉट एट 6 पिलर्स वी टॉक अबाउट. ठीक है. लाइकवाइज आगे देखोगे कि ब्लॉकर्स, ब्लॉकर आप कंसिस्टेंटली देखो आपके 15 से 20% के बीच में ब्लॉकर्स चल रहे हैं, मतलब डबल डिजिट्स. यूजुअली हम क्या सेट करते हैं एक्सपेक्टेशन कि ब्लॉकर्स सिंगल डिजिट होना चाहिए, लेस देन 5% होना चाहिए. ठीक है. एंड यू कैन इजीली ट्रैक इट थ्रू. नाउ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू कि अगर आप राइटली उसको वर्कफ्लो सेट करोगे और राइटली पिलर्स को काउंट करोगे. आई स्टिल आई एम अगेन सेइंग वी आर ओनली टॉक अबाउट ओनली वन ऑब्जेक्टिव और वो क्यूए का है एट दिस मोमेंट. लाइकवाइज देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव एज वेल. वो प्रोडक्ट टीम पे भी आता है, वो फ्रंट एंड टीम पे भी आता है, वो बैक एंड टीम में भी आता है, वो डेवऑप्स टीम पे भी आता है. All the teams can be captured like this. ठीक है. So it's not only on the moment, on the quarter, it's year on year. We perform the, let's say, trend analysis, and you see by doing all those exercises, you see the trend. It's getting better. Clear enough? And this is all through a test. आपको बाहर से कोई इंफॉर्मेशन ना एक्सेल मेंटेन करनी है, ना आपको डॉक मेंटेन करना है, कुछ नहीं मेंटेन करना है. यू जस्ट नीड टू टैग द थिंग्स प्रॉपर्ली एंड यू विल गेट सच ट्रेंड्स वेरी इजीली. यू कैन कीप यूजिंग इट. दिस इज योर टोटल प्लेटफॉर्म रिलीजेस, राइट. अब आप ये बोलते हो कि ये मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, राइट. एट द सेम टाइम ये आपका वन शॉट रिलीजेस पैटर्न है फॉर द ईयर. Year on year, if you just go back and do that, then you need to know कि कितनी apps में आपने कितने releases किए and how are you doing in terms of the quality checks. आपको कुछ extra effort नहीं डालना है. आज आप जो field डालोगे आप 4 साल बाद में उसका value आराम से निकाल सकते हो. Only thing you need to take the things properly, set up the practices properly. Any questions from this? थोड़ा मुझे फास्ट भागना पड़ेगा सर ने. Yeah. So no, definitely offline though we will talk about. Okay, I think the last topic which is automation. So I think ये, if you see, I'm not sure like how many people are using this way of creating the rules. कोई use करता है AI for creating the rules? Yes, great. So अब rules, automation rules आप बनाने में शर्माते हो कि मतलब बिंदास बनाते हो? सिंपल क्वेश्चन. मतलब बनाते हो बिंदास कि शर्माते हो यार थोड़ा ऑटोमेशन कौन जाके करेगा? What I generally do is I pick the default access and then start picking as my requirement. बराबर है. That's the right practice, right? The only question is कि are people using it? Are they believer of using automation? ठीक है. हाँ, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा. जो मैंने अभी इतना सब ये रामायण में बताया ना, खाली क्यूए का. अगर आप 10 जनों की क्यूए टीम हैंडल कर रहे हो ना, तो आपको चेस करना पड़े लोगों को कि यार तू क्यों लेबल डालता नहीं है, तू क्यों उसको क्लोज करता नहीं है, तो भी जिंदगी खराबी है ना. यस और नो? मतलब तो इसीलिए ये भाई साहब जी पिक्चर में आते हैं. I will tell you in the interest of time, let's talk about these things. For example, ठीक है. So change request management है. So what was happening कि हमारा जो one of our client was having the issue of having a frequent requirement changes. वो BA आके कभी भी स्टोरी में कुछ भी 2 लाइन लिख के चला जाता है.
फिर जब वो क्यू आता है बोले वो लिखा हुआ आपने बनाया नहीं, डेवलपर बोलेगा कब बताया तूने मुझे करना है, तो कब डाल दिया आपको, मैं तो बना दिया उसके बाद वो डाल के चला गया, राइट। So what we have done is like we have started having a practice of automation, and उसमें हमने क्या करा कि स्टोरी जब फ्रीज हो जाती है तो इट कांट मेक एनी चेंजेस, एंड आपको चेंज रिक्वेस्ट करके एक हमने वर्चुअल बंदा बनाया. You just need to tag add change request and it creates automatically a new task saying that's a CR. उसमें किसी को कहीं कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली नया टास्क मिलता है CR. It is assigned to the person who is owning the store. Now it's up to that person कि आप इसी रिलीज में करना चाहते हो कि अगले रिलीज में करना चाहते हो, इसी स्प्रिंट में करना चाहते हो कि नेक्स्ट में करना चाहते हो, आपकी मर्जी. बट CR is CR, and in a way it's helping प्रोडक्ट टीम also saying that कि प्रोडक्ट टीम का प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट टीम का पैसा कटना हो सैलरी में, तो कब काटेंगे, उसको ऐसे पकड़ना हो तो कैसे पकड़ोगे? डेवलपर को तो पकड़ोगे, तेरे इतने बग्स हैं. क्यूए को ऐसे पकड़ोगे, तेरे प्रोडक्शन बग्स आ गए, उसको कैसे पकड़ोगे? CR से. सीधी बात है, CR क्यों आता है कि या तो आपने रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके दिया नहीं, राइट. जस्ट आई नो लाइटर नोट है, किसी को गला नहीं पकड़ने में, ठीक है. सो कहने की बात ये है कि सी इट हेल्प्स यू टू मेक श्योर योर प्रायोरिटीज अलाइन. इफ यू आर प्रॉपर्ली डिफाइंड CR तो आपका प्रायोरिटीज अलाइन होता है. सिमिलरली आपका एक हमने ऑटोमेशन का बनाया था फॉर ऑटोमेटिकली असाइनिंग टू द स्पेसिफिक पर्सन. अगर आपका टास्क टाइप एक स्पेसिफिक टाइप का आ रहा है, इट गोस टू द स्पेसिफिक पर्सन. ऑटोमेशन नहीं कर दिया उसका, मुझे बैठ के वो नहीं करना कि ये टास्क आया तो ये X को दूं Y को दूं. अगर ये पैटर्न का टास्क किसी ने बनाया एंड इट्स नॉट बिटवीन द डेवलपमेंट टीम, इवन समवन सिटिंग इन US working as a customer success manager, if he has got an issue and he selected a particular task, let's say data issue, so it goes directly to the some specific person. That's a theory, and then that person takes care of. ठीक है, तो आपको क्या है कि जो प्रायोरिटीज है, अलाइनमेंट है, टाइम सेविंग वाला पार्ट है. सो SLA बोल दो, मेरे पास आएगा अगर मैं रात को देर से सोया, सुबह लेट उठा तो चला गया, वो सब नहीं करता. बट इट गोस टू द प्रॉपर टीम डायरेक्टली एंड दे स्टार्ट टेकिंग. तो आपका SLA उसमें एडजस्ट होता है. गॉट इट? सेम थिंग है पेरेंट स्टोरी रिजोल्यूशन. आपका सब टास्क पूरा होगा, इट शुड ऑटोमेटिकली रिजॉल्व द पेरेंट स्टोरी. नहीं तो क्या है कि यू हैव टू कीप मैनुअली डूइंग इट. अच्छा देखा 5 टास्क जब हो गए, अच्छा मैं रिजॉल्व. ठीक है. एंड लाइकवाइज ऑपोजिट एज वेल, अगर कुछ नया बग इंट्रोड्यूस होता है तो इट रीओपन्स द स्टोरी. तो ये सब चीजें क्या है कि अब मतलब इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना है, लॉट ऑफ थिंग. एंड ऑटोमेशन जीरा तो देता ही था पहले से, पर आपको लिखना पड़ता था काफी सारा, वो बनाना पड़ता था डब्बे सारे. अब उसकी भी रही सही कसर इसने यहाँ पे जो हमने देखा है कि एक लेमन लैंग्वेज में AI आपको बताता है, आपको जस्ट राइट करना है लाइक ऐसे करना है, व्हेन ऑल सब टास्क आर डन सेट द स्टेट्स ऑफ पेरेंट्स, वो आपको ऑटोमेटिकली बना के ये आपको दे. आपको जस्ट रूल को इनेबल करना है. ठीक है. सो यूज इट, काफी काम का है. ठीक है. विद दिस कमिंग टू एन एंड, Q&A, फॉर्मल Q&A किसी को पूछो यार क्वेश्चन भाई. तो ये मतलब ये सारा कोई भी प्रोजेक्ट को रीमेक कराने का पर्पस ये होता है कि कितनी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है उसको मेजर करना. कुछ भी हो सकता है. एफिशिएंसी के अलावा प्रोडक्ट की सक्सेस भी होती है. एफिशिएंसी तो आपकी टीम लेवल की होगी ना, प्रोडक्ट की सक्सेस भी तो है. प्रोडक्ट की एफिशिएंसी एंड सेम No, success also. कितना अच्छा लगा है वो, रिव्यू कितना अच्छा पड़ा है उसका. हाँ देखो, रिव्यू एक बात है. अब अगर आप प्रोडक्ट का एक पाई चार्ट बनाओगे लाइफ का, तो पाई चार्ट आपको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा. उसमें एक होता है आपका उसका डेवलपमेंट, ठीक है. एक होता है उसका वो फेज जहाँ पे आप उसकी बीटा टेस्टिंग करा रहे हो, ठीक है. एक वो फेज होता है जब एक्चुअली मार्केट में चला गया. अब इन तीनों फेजेस में आपका जो डॉट्स है ना वो नॉर्थवर्ड जाने चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. और वो सारी ट्रेसेबिलिटी यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर टैगिंग द थिंग्स. ठीक है. If there is no question, then thank you very much.